نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے حصول، آخرت کی ابدی اور دائمی نعمتیں پانے، جنت میں بلند درجات حاصل کرنے اور کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے مختلف اعمال و اذکار بیان فرمائے ہیں اور انہیں کرنے کی ترغیب و تاکید کی ہے۔ انہی اذکار میں سے ایک ذکر یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ احادیث مبارکہ میں اس کلمہ کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں۔ یہ کلمہ دنیا و آخرت کی بہت سی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، لہٰذا ذیل میں اس کے فضائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متعدد احادیث مبارکہ میں ان کلمات کو جنت کا خزانہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ جب وہ کسی بلندی پر چڑھتے یا کسی وادی میں اترتے تو بآواز بلند تکبیر کہتے۔ یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے لوگو، اپنے اوپر نرمی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے، بلکہ تم اس کو پکارتے ہو جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میں اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا، تو آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نام لے کر فرمایا کہ اے ابو عبداللہ بن قیس، میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اس حدیث شریف میں ترغیب دی گئی ہے، جس طرح انسان کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خزانہ جمع کرے تاکہ دنیا میں خوشحال اور عیش و راحت سے زندگی گزارے، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اس کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرے تاکہ آخرت میں ابدی راحت نصیب ہو، جنت میں اعلیٰ درجات اور زیادہ نعمتوں کا حصول ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرنے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نصیحت فرمائی ہے اور اسے جنت کا درخت کہا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اپنی امت کو حکم کیجئے کہ وہ کثرت سے جنت کے پودے لگائیں، کیونکہ جنت کی مٹی عمدہ اور زمین کشادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جنت کے پودوں سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کا دروازہ کہا ہے۔ چنانچہ مشہور صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے فرزند قیس بن سعد سے روایت ہے کہ ان کے والد نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کر فارغ ہوا اور لیٹنے لگا تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور مجھے متوجہ کر کے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے متعلق نام بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہی فضیلت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں بھی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں مزید یہ بات بھی آئی ہے کہ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی میرے بندے نے فرما برداری کی اور سر تسلیم خم کیا،
मुकम्मल हदीस दर्ज झैल है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा कलमा ना बता दूं जो अर्श के नीचे खजाने जन्नत के खजाने में से है। तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहो, जिसे सुनकर अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने फरमाबरदारी की और सर तस्लीम खम किया। तो नाजरीन, इसकी कसरत से तस्बीह करें, इंशाल्लाह आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी और मुश्किलात दूर होंगी, क्योंकि इसमें 99 बीमारियों का इलाज है। हदीस मुबारका में जुमेरात की रात को रोशन रात और जुमा के दिन को मुबारक दिन कहा गया है। इन 2 दिनों की फजीलत बहुत ही ज्यादा है, तो ये 2 दिन आपने ज़ाया नहीं करने। इस कलमात की बरकत से अल्लाह पाक आपकी मांगी हुई दुआओं को रद्द नहीं फरमाएंगे। अल्लाह पाक आपकी मांगी हुई तमाम दुआओं को शरफ़े कबूलियत बख्शेंगे। जो भी हाजत आपके दिल में होगी पूरी हो जाएगी। इस वीडियो में जुमेरात और जुमा के दिन का एक वजीफा पेश किया जा रहा है, जिसके करने से इंशाअल्लाह ताला दुनिया की हर चीज आपसे मोहब्बत करेगी। ये एक स्पेशल जुमा के हवाले से अमल है। इस अमल को करने से, इसकी बरकत से चरिंद परिंद यहाँ तक के फरिश्ते भी आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। ये एक आजमुदा अमल है और इस अमल को की बहुत ज्यादा फजीलत है। इस अमल को आपने खुद भी करना है और दूसरे मुस्तहिक लोगों तक भी पहुंचाना है। जुमा के दिन की बहुत ज्यादा फजीलत है और इस दिन को तमाम दिनों पर फजीलत हासिल है। इस दिन के बहुत ज्यादा वज़ाइफ भी हैं और इस दिन दुआएं खास तौर पर कबूल होती हैं। इसमें कबूलियत की घड़ियां भी मौजूद हैं। इस दिन में 2 घड़ियां ऐसी हैं कि इन घड़ियों में आपने दुआ मांगनी है और इंशाअल्लाह ताला जब आप इन घड़ियों में दुआ मांग लेंगे तो आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में जुमा के दिन है कि जिस दिन क़यामत बर्पा होगी और इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया और इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल भी किया गया था। इस दिन अल्लाह पाक से सच्चे दिल से आप जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला वो आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि ला हौला वला कुव्वता उसके पढ़ने के क्या फायदे हैं? आज मैं आप लोगों को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला उसके पढ़ने के 5 बड़े फायदे बताने जा रही हूँ, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी ज्यादा फजीलत, इतने ज्यादा बेनिफिट्स, इतने बड़े फवायद हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ने के। और ये जो अल्फाज हैं ये हर शख्स को याद हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं, क्योंकि शैतान हमें पढ़ने नहीं देता। शैतान इस तरफ हमें जाने ही नहीं देता कि कहीं हमारा रास्ता अल्लाह और उसके रसूल के साथ मजबूत ना हो जाए। शैतान तो हमारा खुला दुश्मन है। तो आज मैं आप लोगों को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ने के चंद हैरान कुन फवायद बताने जा रही हूँ। ये याद रखिएगा कि ये एक जबरदस्त दुआ है, ये पावरफुल वजीफा है, ये पावरफुल अमल है और ये कई बीमारियों का इलाज है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। आइए जानते हैं कि इसके पढ़ने के क्या फायदे हैं। फायदा नंबर 1, हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बिस्मिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम रोजाना 10 मरतबा पढ़ेगा, फरमाया वो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाएगा जैसा कि आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। सिर्फ 10 मरतबा पढ़ने का ये फायदा है कि गुनाह बख्श दिए जाएंगे। ऐसा गुनाहों से पाक होगा जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। फायदा नंबर 2, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो, उसकी कसरत करो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ा करो, क्योंकि ये जन्नती खजानों में से, जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, यानी जन्नत के खजानों में से एक खजाना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसकी कसरत करें, क्योंकि इसके पढ़ने वाला शख्स जन्नती है। जाहिरी बात है, जन्नत का खजाना तो उससे ही मिलेगा जो जन्नती होगा।
तो फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसकी कसरत किया करो क्योंकि ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। फायदा नंबर 3, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये वो अमल है जो दुनिया की 70 बलाओं से आफियत दिलाता है। यानी जो शख्स पढ़ता है वो दुनिया की 70 बलाओं से आफियत हासिल करता है, उसे आफियत मिल जाती है। इतना पावरफुल वजीफा है। वो लोग जो जाली पीरों के पास जाते हैं, जरा इन अहादीस की तरफ भी तवज्जो करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा अमल बताया है। फायदा नंबर 4, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 99 अमराज की दवा है, 99 बीमारियों का इलाज है, 99 बीमारियों की दवा है। आज हर दूसरा शख्स बीमारी में मुब्तला है और फिर हम इस तरह के चक्रों में पड़ जाते हैं, यानी बाबाओं के पास जाते हैं और कहते हैं कि कोई तरीका बता दें, कोई ऐसा अमल बता दें, कोई तावीज़ दे दें। फिर वो हमें ऐसे ऐसे अपने जाल में फंसाते हैं कि जिससे हमारी दुनिया तो बर्बाद होती ही होती है, दुनियावी माल तो हमारा ज़ाया होता ही है, हमारी आखिरत भी बर्बाद कर देते हैं, वो हमारा ईमान तक बर्बाद कर देते हैं। तो इन लोगों से बचें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 99 बीमारियों में से सबसे अदना मर्ज, सबसे छोटी बीमारी, 99 बीमारियों का इलाज है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फरमाया इन 99 बीमारियों में से सबसे छोटी बीमारी जो है वो गम है। आज हर दूसरा शख्स गम में मुब्तला है, डिप्रेशन का शिकार है, गम में मुब्तला है, खुशी नहीं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं, तो कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसका विर्द शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़ वजल आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे, आपको खुशियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी, डिप्रेशन खत्म हो जाएंगे। उसका फायदा नंबर 5 है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रोजाना 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, वो किसी का मोहताज नहीं रहेगा। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स से तंगदस्ती दूर कर देगा, उसे किसी का मोहताज नहीं रखेगा। जो 100 मरतबा रोजाना ये पढ़ता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस पर रोजी तंग हो, हर दूसरे शख्स का मसला है, आज हर दूसरा शख्स इसमें मुब्तला है। कोई कहता है कि मेरी रोजी तंग है, मुझे रिस्क नहीं मिल रहा, मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरे पास आमदनी नहीं है, मेरे रिस्क में बरकत नहीं है। तरह तरह के मसाइल हैं और ये सबसे बड़ी वजह है आजकल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस पर रोजी तंग हो उसे चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करे, क्योंकि इससे रिस्क की तंगी दूर होती है, रिस्क में बरकत होती है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है इसकी पढ़ने की और कितने बड़े बड़े फवायद हैं। मैं तो कहती हूँ सैकड़ों वज़ाइफ जो आप लोग रोज करते हैं ना, सारा दिन लगे रहते हैं इन बाबाओं के वज़ाइफ के चक्कर में, तो वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरमान पर अमल करें। इंशाअल्लाह अज़ वजल दुनिया तो संवरेगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। जज़ाकल्लाह खैर।